Hello students. So in this video we are going to discuss about different types of habitats. Now first of all we will discuss about some terrestrial habitats. In this part we will discuss about deserts. So already we have discussed the adaptive features of camel which live in deserts basically. Now let us talk about the plants, and you know that very well, all of you, that cactus are exclusively found in deserts. Okay. So what are the adaptive features that takes place in desert in these cactus plants or the plants which live in deserts? So the most important feature is that they don't have leaves, they have spines. The leaves modified into spines. Now the question arises, when the leaves modified into spines, then how do they photosynthesize? इनके केस में photosynthesis कहाँ होती है? So generally they have green stems which contain chlorophyll. So their green stem, they do photosynthesis process. Secondly, their stems are very thick and fleshy, which uh, has lot of water in it. देन द नेक्स्ट फीचर इज़ दे हैव वेरी एक्सटेंसिव रूट सिस्टम. अगर आप इनकी रूट्स को देखें, क्योंकि पानी की खोज होती है इनकी रूट्स को, दे नीड लॉट ऑफ वाटर. भाई पानी चाहिए, हर प्लांट को वाटर चाहिए, तो इस चक्कर में इनकी जो रूट्स होती है वो बहुत डेवलप्ड हो जाती है और काफ़ी गहरे अंदर ग्राउंड में चली जाती हैं. तो दे हैव गॉट वेरी एक्सटेंसिव रूट सिस्टम. सो दीज आर ऑल द अडेप्टिव स्पेशल फीचर्स विच आर इन desert plants, or because of all this reason desert plants can easily survive. These plants can easily survive in desert area. Generally other plants cannot. And generally they have very thick waxy layer also present over the stem, so that loss of water does not takes place. Now next comes to mountain regions. Mountain regions, whenever we talk about mountain regions, in our mind generally we have very cold areas, right? Thandi jagah, high mountains. So generally those animals generally found there, they are having thick coat of fur, ठीक है, long hair on their body for the protection. Secondly, they have thick fleshy skin. बहुत ज़्यादा फ्लैश होता है बॉडी में, ताकि उनकी बॉडी जो है वो बॉडी की हीट जो है वो बाहर ना निकले और उनकी बॉडी हॉट बनी रहे. इट बिकम्स द बॉडी इज रिमेन्स हॉट. सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन दे कैन ईजीली सर्वाइव ऑन इन वेरी कोल्ड एरियाज. अगर आपने कभी ये पेंगुइन, सील, वॉलरस को भी देखा होगा, पानी में रहते हैं, कितने फ्लैशी होते हैं ये एनिमल्स, क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत थिक लेयर ऑफ फैट होती है विच एक्चुअली कीप्स देम प्रोटेक्टिव. नाउ और रही बात इनकी माउंटेन क्लाइंबिंग की, तो इनके जो हूफ्स वगैरह होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. वो उससे डिज़ाइंड होते हैं कि जो माउंटेन लायन है, स्नो लेपर्ड है, या ये सारे के सारे जो हैं वो आराम से पहाड़ों पे चढ़ लेते हैं. दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. जबकि यहाँ पे जो गोट्स मिलती हैं, दे आर नॉट अडेप्टेड. वो गोट्स बिल्कुल माउंटेन गोट से डिफरेंट होती हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट plants, you must have seen, they have very thin needle like leaves, so that water or snow, they slide off. कोई भी बर्फ़ या पानी उस पर टिक ना सके, नहीं तो वहाँ पे ही जम जाएगा, स्टोमेटा को ब्लॉक कर देगा. तो ये नहीं होना चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न दे हैव नीडल लाइक लीव्स. देन there could be trees with shapes very different from these that are also present on mountains. They have different kind of adaptation. They have sloping branches, cone shaped. और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है आपने क्रिसमस ट्री देखा हुआ है सब बच्चों ने. क्रिसमस ट्री की शेप भी कोन जैसी होती है, ऊपर से पॉइंटेड, ठीक है, और ब्रांचेस उसकी स्लोपिंग होती है, नीचे की तरफ झुकी हुई, और पतली पतली लीव्स होती हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल विच आई कैन गिव यू टू अंडरस्टैंड इट. सो अगेन these are the adaptive features.
Next is grassland. Grasslands are those particular area where most of the cases grass become dry and brown in color. ठीक है, बड़ा ऐसा, और वहाँ पे ह्यूज ट्रीज कम होते हैं. ठीक है, तो यहाँ के जो 2 एग्जांपल्स हमने लिए हैं, दैट इज़ लायन एंड डियर. तो लायन तो बड़े अच्छे से अडेप्टिव होते हैं. अगर ग्रासलैंड की बात की जाए तो lions have long claws in their front legs. They have brown colored skin जो बिल्कुल ब्राउन ग्रास से मिलती है. तो easily they can hide themselves in that grass. Then they have very long claws. They can easily attack with those claws. They have got front eyes. उनकी जो आँखें होती हैं दोनों सामने की तरफ होती हैं जैसे ह्यूमंस की होती हैं. सो दे कैन गेट करेक्ट आइडिया ऑफ एनीथिंग. हर चीज़ का एकदम परफेक्ट डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाने का उनका जो वो होता है वो बड़ा अच्छा होता है, जिससे वो अपने प्रे को अच्छे से अटैक कर पाते हैं. ठीक है. एंड स्पीड, ऑफ कोर्स, दे हैव गॉट वेरी गुड स्पीड, फास्ट स्पीड. So all these features make lion a perfect animal in grassland, to survive in grassland. Other than that, deer. Again, deer is also found in grasslands. अब deer का adaptive feature क्या है? It has got very strong teeth for chewing hard plants, because you all know that deer are herbivores. Deer needs to know about the presence of predators, तो in order to run away. तो आपने देखा होगा जो डियर के ईयर्स होते हैं वो बिल्कुल टॉप पे होते हैं, एकदम इरेक्ट स्टेज में. ठीक है. वाई? इट वर्क्स लाइक एन एंटीना. वो रिसीव करते रहते हैं, ज़रा सी भी साउंड उनको लगती है तो उनके ईयर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं. सेकेंडली, उनकी जो आइज़ होती हैं वो लायन की तरफ फ्रंट में नहीं होती. दे हैव गॉट आइज़ ऑन देयर साइड्स. ठीक है. साइड में आंखें होने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, उनको पूरा दिखता है, मोर देन 180 डिग्री दिखता है उनको. जबकि हमें अपनी 2 आंखों से खाली 180 डिग्री दिखता है, उनको 180 डिग्री से ज़्यादा बड़ा व्यू मिलता है, पूरा पीछे तक देख पाते हैं वो कि कोई इन पर अटैक तो नहीं कर रहा. एंड दे कैन ईजिली रन अवे. देन they have got very fast speed. So all these features make them great to survive in the grasslands. Then we can discuss now aquatic habitats. Aquatic habitats में पहला है ocean. Oceans में आप जानते हैं oceans are very deep. Ocean has got very salty water. तो वहाँ पे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, सो दे हैव गॉट स्ट्रीमलाइन शेप्ड बॉडी. ठीक है. लेकिन सबकी नहीं होती. ओनली यू कैन से फिश जो होते हैं दे हैव गॉट स्ट्रीमलाइन बॉडी. लेकिन अदर देन दैट दे हैव ऑक्टोपस, स्क्विड्स, एंड देयर आर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्रैब, है ना. ये सब की बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती. So they actually stay very deep in the ocean, near the seabed. वो वहाँ, लेकिन जब उन्हें मूवमेंट करना होता है, so they sometimes they make their body when they move ना, वो अपनी बॉडी की शेप को इस तरह से बना लेते हैं कि वो स्ट्रीमलाइन जैसी हो जाती है, ताकि ये इजीली स्विम कर सके पानी में. एंड दे हैव गॉट अदर अडेप्टिव फीचर्स, अदर टाइप ऑफ यू कैन से अटैक करने के लिए उनके अलग फीचर्स होते हैं. जैसे ऑक्टोपस can spray some poisonous ink over their hunter. जो भी predator या वो आता है उनकी तरफ, उसको वो उस इंक से अटैक करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे अपने अपने तरीके होते हैं सारे एनिमल्स के. देन when we talk about dolphins and whales, they do not have gills. ये एक अमेजिंग बात है कि though they live in water, they don't have gills. तो फिर ये breathe कैसे करेंगे? They breathe through blowholes or nostrils that are located on the upper parts of their head. And you must have seen also somewhere on the television
दैट कई बार ये पानी के ऊपर आके अपने ब्लो होल से ढेर सारा पानी रिलीज़ करते हैं एंड दे उनकी लंग्स में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपनी लंग्स को फिल कर लेते हैं सरफेस पे आके एयर से, और फॉर मैनी मैनी आवर्स दे कैन सर्वाइव विदाउट ब्रीदिंग एंड दे कैन गो इनसाइड. जब उन्हें दोबारा से ऑक्सीजन चाहिए होती है, अगेन दे कम अप टू द सर्फेस, अगेन दे टेक लॉट ऑफ एयर, fill their lungs, and then they again go down in the water. So this is again one of the most interesting adaptation. ये भी है ना interesting कि कैसे ये लोग भी ब्रीथ करते हैं. सबका अपना अपना तरीका है, सबके पास अपने अपने फीचर्स हैं. पॉन्ड्स एंड लेक्स में देर आर एक्वेटिक प्लांट्स. अलग अलग तरीके के एक्वेटिक प्लांट्स हैं. यू कैन सी 3 टाइप्स ऑफ plants are shown in this picture. There is one plant, the first one, it's attached to the soil, है ना, and rest of the body are is above the water. Second plant is completely submerged in water, पूरी तरह से पानी के अंदर है, and but attached to the soil. And the third is not attached to the soil, simply floating on the surface of water. So all of them are having different type of adaptations. ठीक है. जनरली जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं दे हैव गॉट हॉलो स्टेम, सॉफ्ट एंड हॉलो स्टेम, सो दैट पानी के बहाव से वो स्टेम इजीली इधर से उधर मूव कर सके, क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो वो पानी के बहाव से टूट जाएगी. दे हैव गॉट रिबन लाइक लीव्स. ठीक है. सो easily it can move here and there. Then the plants which are completely submerged in water, they have got narrow and thin ribbon like leaves. They can bend in the flowing water and their leaves are highly divided. ठीक है. तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं ये अलाउ करते हैं. अब आप देख सकते हो इनकी ये इतनी ईजीली फ्लोट कर रहे हैं पानी के बहाव के साथ. दे डू नॉट गेट डैमेज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ देयर लीव्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ देयर स्टेम. देन about frogs. What are the adaptive features of frogs? Frogs are amphibians. That means they can live on land also as well as inside water also. They have strong back legs. They can easily jump and hop. That help them in leaping and catching their prey. They have webbed feet which help them swim in water. तो उनके जो webbed feet होते हैं उससे ये easily swim कर सकते हैं. Other than that, they can easily breathe through skin also. ठीक है. तो ये स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका फीचर है, थ्रू लंग्स ऑल्सो एज वेल एज थ्रू स्किन ऑल्सो. देन rest of the topic we'll discuss in the next video.